हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ यूनिट नंबर 6। सो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ यूनिट नंबर 7 जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ यूनिट नंबर 6। सो बच्चे इस वीडियो च दोबारा मैं रिपीट कर रही हाँ कि जो साडा बच्चे फर्स्ट टर्म का पेपर आया सी वो डिटो एक्यूरेट दी बुक दे विचों 100% पेपर आया सी। और रीसेंटली जो बच्चे थोड़ा कैमिस्ट्री का पेपर होया है बच्चे वो भी जोड़ा है डिटो थोड़ा एक्यूरेट की बुक के विचों पेपर आया। और जी सो बच्चे जेडे स्टूडेंट इंटैलीजेंट स्टूडेंट आ 35 आउट ऑफ 35 सोच रहे हैं बच्चे एक क्विक रिविजन असी करांगे वो बहुत अच्छी तरीके तुसीं प्रिपेयर करनी आ। और जो वीक स्टूडेंट आ एवरेज स्टूडेंट बच्चे एक्यूरेट की बुक बहुत अच्छी तरीके प्रिपेयर करके जान। और जो वीक स्टूडेंट आ बच्चे जेडे क्वेश्चन मैं दस रही हाँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ एग्जाम के आ सकते हैं। सो बच्चे वो तुसीं बहुत अच्छी तरीके प्रिपेयर करने। सो चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे अज का असी अपना लैक्चर। सो स्टार्ट करांगे सब तो पहला क्विक रिविजन तो दैन 1 मार्क्स के क्वेश्चन दैन 2 मार्क्स के क्वेश्चन और लास्ट विच करांगे 3 and 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 7th ਯੂਨਿਟ ਆ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਟਿਕਸ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਆ ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 35 ਚੋਂ 35 ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚੱਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ bouncing back of the light in the same medium when light is incident on the surface is known as a reflection। सो बच्चे डायग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रही ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ ਟਕਰਾਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲॉज ਕੀ ਆ, ਲॉज ਅਸੀਂ 9th 10th ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਆ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਆ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲॉ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਆਲ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ 2 ਲॉज। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇਫ I equals to 0 then R equals to 0 or if light wave normal on plane it refract its path। मान लो सीधी बच्चे शीशा है इस तरीके का, रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आई टकराई तो वापस चली गई सेम मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਇਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਇਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ AC मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਇਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਫॉर प्लेन मिरर। ਬੱਚੇ प्लेन मिरर ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ प्लेन मिरर ਆ ਬੱਚੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ R ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉਨਾ ਹੀ F ਹੁੰਦਾ, ਸੋ F ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ 0 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, P ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1/f ਦੇ, F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0, 1/0 ਮੀਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ठीक है जी। सो क्योंकि इत्थे F की वैल्यू इनफाइनाइट आ, 1/इनफाइनाइट मीनस 0, सो पावर कितनी होगी 0। सो प्लेन मिरर दे विच सानू की आ उल्टे अक्षर दिखाई दिंदे आ। फॉर एग्जाम्पल जे असीं बच्चे अपनी बुक नूं लैके शीशे के अगे खड़े हो जाइए ना, सानू सारे अक्षर जिहड़े उल्टे दिखाई देणगे। सिमिलरली सानू अपना फेस भी इदां ही दिखाई दिंदा, सानू अपना फेस तो देखने च बहुत सोहना लगदा। मान लो अपने पेरेंट्स नूं नाल लैके खड़े होवो तो सानू उन्हां दा फेस जदों असीं मिरर दे विच देखदे हां तो सानू उन्हां दा बींगा या टेढ़ा जिहा फेस दिखाई दिंदा आ। सो रीजन की आ कि उन्हां दा लैफ्ट हैंड साइड राइट दिखाई दिंदा ते राइट लैफ्ट दिखाई दिंदा। नैक्सट आ सफेरिकल मिरर आर रिफ्रैक्टिंग पार्ट ऑफ सफेरिकल सरफेस। जिहड़ा बच्चे रिफ्रैक्टिंग मिरर्स आ
ਆਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਮਿਰਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਆ ਇਹ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਟਕਰਾਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾ, ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਰ ਆ ਉੱਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈਆਂ, ਟਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ। ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? 1/f = 1/u + 1/v। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਰਚੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਯੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਇਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਮਨਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਸਮੋਲ, ਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਵਹੀਕਲਸ ਟੂ ਸੀ ਰੇਅਰ ਵਿਊ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਵਿਊ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਔਨ ਅ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਵੈਕਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਮਿਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਟੀਥ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਟੀਥ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਬੱਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? M = I/O। I ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਅਤੇ O ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ -V/U। V ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, U ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਈ, ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਈ, ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਨੋਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 30 ਡਿਗਰੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਆ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। It is defined as a ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium. So mu is equals to C over V. So this is the important definition. Next are relative रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन आ पेपर में आने के चांसिस बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ बहुत बारी बच्चों को ये नहीं पता लगता कि असी म्यू नू म्यू2 ओवर म्यू1 किस तरीके नाल लिखना। अगर म्यू1 बच्चे ऊपर आ मतलब रेशो ऊपर आ टर्म नीचे और जो डिवाइडेड बाय चा वो ऊपर, सो इस फॉर्म दे विच जिहड़ा इनू लिखिया जाता है। क्लीयर हो गया। सो बच्चे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू आ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आ। अगर असी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होवे दोनों टर्म्स नू डिवाइड कर दो, वाटर डिवाइडेड बाय ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर नू नीचे लिखिया है ये ऊपर आएगा, आह ऊपर लिखिया है तो ये नीचे आएगा, ठीक है जी। सो लिखन का इस तरीके का तरीका हुंदा है इहदा। सो इनू सॉल्व करके देख लो, थोड़ा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो बच्चे ये नाल दे 1 मार्क्स के क्वेश्चनस जोड़े आ वो आ सकते, 1 की 2 मार्क्स के क्वेश्चनस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ा आ बच्चे वो वॉयलेट का ज़्यादा आ, जी वेवलेंथ और रेड लाइट की ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदा ज़्यादा होएगा, ठीक है। मतलब वेवलेंथ बच्चे सानू पता है, वेवलेंथ कितना पता है, विबग्योर पता होएगा थानू, ठीक है। आ पता है, मान लो उन्होंने कहा रेड लाइट की जी वेवलेंथ आ लैम्डा आ सब तो ज़्यादा आ, ये सानू पता है। दैन इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इहदा सब तो घट होएगा क्योंकि बच्चे आ रिलेशन आ साडे को म्यू इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय वी या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। सो जेदी बच्चे हुण इत्थों रेसिप्रोकल हो गया ये चीज़, ठीक है। जिहदा लैम्डा ज़्यादा होएगा उहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट होएगा, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उहदा लैम्डा घट होएगा, ठीक है जी। सो नैक्सट आ जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बच्चे ये 2 लॉज आ। पहली गल की आ एंगल ऑफ जो भी थोड़ा बच्चे साइन एंगल बनया, साइन एंगल ओवर रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल्स टू कॉन्सटेंट, ऑलवेज कॉन्सटेंट, जिन्हों असीं की बोलते हैं स्नैल्स लॉ। दूसरा लॉ सेम आ इंसीडेंट रे, नॉर्मल ते रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। सो ये तीनों दे तीन एक पॉइंट के उपर एक ही प्लेन के उपर लाई करते हैं। नैक्सट आ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। बच्चे ये जो टॉपिक है ना बेसिकली साडे पंजाब बोर्ड दे विच काउंट नहीं हुंदा, बट हाँ CBSE दे विच काउंट हुंदा। सो तुहाडे बच्चे पंजाब बोर्ड दे विच इहदे नाल दा कोई क्वेश्चन पुछया जावे बहुत रेयर चांसिस आ, बट तुसीं एक बारी जस्ट इनू रीड आउट कर लेना, जस्ट एक बारी। नैक्सट आ सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीनस जोड़ा पढ़ लैने कि इन्होंने लिखा आ स्टार ट्विंकल्स ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। सानू पता बच्चे हवा दे विच बहुत सारिया लेयर्स होंदियां आ, ठीक है। धरती तक आंदे आंदे बहुत बारी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जाता है काफ़ी बार। सो जिते एक्चुअल दे विच मान लो टकरा टकरू के इत्थे आई, इनू पिछे वाले इनक्रीज करके इत्थे सानू स्टार दिखाई दिंदा, जद कि स्टार साडा इत्थे सी। क्यों होया, क्योंकि लेयर्स आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ, डेंसर रेयर मीडियम अलग अलग आ, इस करके जिहड़ा आ सानू बच्चे ट्विंकलिंग स्टार जिहड़ा आ ट्विंकल करता होया दिखाई दिंदा। सो हवा दियां लेयर्स बच्चे हवा चलदी रहिंदी आ, लेयर्स हिलदियां रहिंदियां आ, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत जिहड़ा आ वो वेरी करदा रहिंदा आ, जिहदी वजह नाल सानू जिहड़ा स्टार आ ट्विंकल करदा होया दिखाई दिंदा आ। Next are the sun appears elliptical morning and evening due to the refraction of light raying through atmosphere। सो बच्चे सन भी जड़ा सानू एलिप्टिकल मतलब बिल्कुल गोल दिखाई देने की बजाय थोड़ा जा कई बार टेढ़ा जिहा दिखाई देन लग जाता, लाइक जिद्दां एग शेप हुंदी आ या सूरज जो ढर रहा हुंदा सानू कुछ इस शेप दे विच दिखाई दिंदा, कई बार इस शेप दे विच दिखाई दिंदा। एक्चुअल दे विच शेप चेंज नहीं करता, ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ most important definition. The phenomena of refraction when the ray of light travels from denser to rarer medium। बच्चे याद रखना आ जिदा पानी तो हवा विच रे ऑफ लाइट चली जाए इदा ये फिनोमिना एक्ट करता है। डेंसर टू रेयर मीडियम इज सेंड बैक टू द सेम
denser medium provides its strike interference of the denser and rarer medium and angle is a greater than critical angle. So ਇਹਨੂੰ points ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Number 1 ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ phenomena of refraction when ray of light goes from denser to rarer medium. बस इन्नी लाइन लिख दो. सेकेंड लिख दो कि angle is greater than its angle of incidence should be greater than critical angle. critical angle ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ angle ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ greater ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੁਣ critical angle ਹੈ ਕੀ ਆ? critical angle ਬੱਚੇ ਉਹ angle ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ray of light ਆਈ ਟਕਰਾਈ ਔਰ angle of refraction r ਜਿਹੜਾ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ angle ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? critical angle. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? I equal to r, I equal to r. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? क्रिटिकल एंगल ਉਹ ਵਾਲਾ एंगल ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. when light goes from denser medium to the rarer medium then the angle of incident from which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਮਿਊ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1/c. ਹੁਣ c ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ. ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਆਈ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ IC ਦੇ ਇਕੁਅਲ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਈਨ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/μ. ਸੋ ਕੱਲਾ c ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1/μ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਆ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 42, ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 49 ਔਰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 24. ਬੱਚੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਆਰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ? 24 ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ. ਔਰ C ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ. ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਲਿਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ of light through a spherical mirror. ਹੁਣ ਬੱਚੇ spherical mirror this is the most important. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਨਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ CBSE ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, CBSE ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਲੈਂਥੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1/f ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -1/u ਪਲੱਸ 1/v. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/f ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ μ - 1 1/r1 - 1/r2. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ R1 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, R2 ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਟ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ, ਸਿਰਫ R1 R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ. ਅਗਰ ਕਨਵੈਕਸ ਆ ਤਾਂ R1 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਔਰ R2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ. ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, R1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ R2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? R1 ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ. ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ.
कन्वैक्स तो कनकेव तो उल्टा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब कनकेव उल्टा है तो R1 की हो जाएगा नैगेटिव तो R2 की हो जाएगा पॉजिटिव। कोई एक टर्म याद कर लो, कन्वैक्स नूं बच्चे याद कर लो, कन्वैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। अगर कनकेव आ गया बस ध्यान रखना कि R1 R2 असी उतों चेंज कर देना, ठीक है जी। बाकी सारा बच्चे आ टर्म्स जस्ट एक बार रीड आउट कर लो। लेंस फॉर्मूला सानू पता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन की है बच्चे, एम इज इक्वल्स टू आई ओवर ओ साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ वी ओवर यू। सो सिंपल याद रखो बच्चे, एम इज इक्वल्स टू आई ओवर ओ इज इक्वल्स टू वी ओवर यू। बच्चे आ लेंस के केस दे विच जे मिरर होंदे फिर की होना सी, एम इज इक्वल्स टू आई ओवर ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू, ठीक है जी। आ बच्चे मैग्नीफिकेशन कदों आ मिरर दी और आ के दिया लेंस दी, सिर्फ माइनस का फर्क आ, बाकी सारा सेम आ। नैक्सट आ जाओ, अगर कन्वैक्स लेंस आ बच्चे, कन्वैक्स लेंस जो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा तो साडी एम की वैल्यू ऑलवेज नैगेटिव होएगी और जो वर्चुअल आ तो ऑलवेज पॉजिटिव होएगी। नैक्सट है बच्चे पावर ऑफ लेंस की आ, रेसिप्रोकल है एफ का। सो असी पहला भी पढ़ लिया 1/f होंदा आ। सो एफ काहदे च होएगा, मीटर दे विच। अगर सेंटीमीटर आ तो की होएगा 100 डिवाइडेड बाय एफ। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट है बच्चे फोकल लेंथ जिहड़ी आ साडी एफ आ, ओह कन्वैक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होएगी तो पावर भी पॉजिटिव। अगर कनकेव लेंस लैने तो एफ जिहड़ा आ बच्चे वो नैगेटिव होएगा तो पावर भी नैगेटिव ही होएगी, ठीक है जी। सो इसदा यूनिट की आ, SI यूनिट्स की आ डायोप्टर। सो नैक्सट बच्चे कॉम्बीनेशन ऑफ लेंस आ, जस्ट इनू एक बार रीड आउट कर लो। प्रिज्म जिहड़ा आ बच्चे शॉर्ट दे विच पढ़न का फायदा नहीं क्योंकि साडा लॉन्ग आर्टिकल आएगा। सो बच्चे म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम ओवर ओ डिवाइडेड बाय साइन ए ओवर 2। सो आ फॉर्मूले नूं असीं बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। की कह दिंदे आ प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला जो कि पंजाब बोर्ड दे विच क्वेश्चन ज़्यादा आंदा कि ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला। अगर प्रिज्म फॉर्मूला तुहाडे पेपर दे विच आ जांदा है तो तुसीं इत्थे तक लिख के आना है, ठीक है जी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे ग्राफ नहीं प्लॉट करके आते। सो ट्राई करो कि ग्राफ प्लॉट करके आओ। अगर मेरे वर्गा टीचर कोई पेपर चैक करता होएगा तो मैं एक जो ग्राफ एक्सपैक्ट करांगी। सो अगर ग्राफ एक्सपैक्ट करांगी इसदा मतलब तुसीं नहीं बना के आते तो हाफ मार्क्स कटिया जाएगा। नैक्सट आ जाओ, इन द पोजीशन ऑफ मिनीमम डेविएशन। अगर मिनीमम डेविएशन की गल करते हैं, जो बच्चे आई एंगल आ वो ई दे इक्वल आ जाता है। साडा जिहड़ा फॉर्मूला बच्चे आ ड्राइव करके आंदा। नैक्सट आ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का की मतलब आ कि एक लाइट जो प्रिज्म दे विचों पास की तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स दे विच टुट जाती आ। सो दैट लाइट इज़ नोन एज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वैन वाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इट्स स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स प्रिज्म, ठीक है। 7 कलर्स दे विच टुट जाती है जिन्होंने असीं की कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो प्रिज्म की डायग्राम बिल्कुल करैक्ट बनी हुई है बच्चे, तुसीं एक्चुअल दे विच इस तरीके नाल डायग्राम ड्रॉ करके आनी आ। सो काफ़ी बच्चे एक्यूरेट की बुक यूज़ करते हैं। एक्यूरेट की बुक दे जो ये डायग्राम आ ना उदा नहीं बनानी हैगी, मतलब जिद्दां तुसीं फुल झड़ी बना दिंदे आ इस तरीके नाल आगे आ बना दिंदे बच्चे, आ चीज़ गलत आ, ठीक है। आ चीज़ गलत आ, बार बार हर वीडियो दे विच मैं आ चीज़ दसदी हाँ कि आ चीज़ गलत आ। प्रॉपर डायग्राम बच्चे इस तरीके नाल बना के आओ, ठीक है जी। कॉज ऑफ डिस्पर्जन बच्चे इहदे नाल दा जिहड़ा आ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकदा आ कि किद्दां हुंदा आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैमडा, डेविएशन एंगल एक्सैक्ट्रा। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इहदे विचों। सो जिहदा बच्चे लैमडा ज़्यादा होएगा, ठीक है, जिद्दां रेड लाइट का बच्चे लैमडा ज़्यादा आया, सानू पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सी उहदे रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल मतलब कि लैमडा इज़ 1/μ। जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा उहदा लैमडा घट होएगा। जिहदी वेवलेंथ ज़्यादा आ, जिद्दां रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट की होएगी घट होएगी। सो बच्चे क्योंकि जिहड़ा साडा म्यू आ वो डेल्टा दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, जिहड़ा डेल्टा आ ओह म्यू दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। सो जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा उहदी डेविएशन एंगल भी ज़्यादा होएगा। नैक्सट इज़ एंगुलर डिस्पर्जन की आ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटीरियल असी किद्दां लिखांगे, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा। अगर इनू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म दे विच लिखना चाहते हैं तो की आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1,
ठीक है जी, क्योंकि सेम आ बच्चे ये यूनिट्स तो कट्टे जाएंगे आपस में, तो आंसर आ जाऊगा नो यूनिट्स। सो बच्चे एंगुलर डिस्पर्जन लर्न कर लो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जोड़ा आ इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट बच्चे की आ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चे थानू फॉर्मूला जोड़ा अच्छे तरीके नाल लर्न होना चाहिए। रीसेंट टाइम दे विच जोड़ा आ शॉर्ट फॉर्म दे विच पुछया जांदा कि माइक्रोस्कोप की वैल्यू दस दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वैल्यू दस दो। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जो इनफिनिटी ते केस बनता होवे। अच्छा बच्चे ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रही है कि टैलीस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, कि मैम दोनों केस करके आने आ, इनफिनिटी वाला भी तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वाला भी। सो बच्चे दोनों केस नहीं करके आने। जोड़ा टैलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आ 3 मार्क्स में आने के चांसिस बहुत घट आ। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जोड़ा पूछया गया आ उही करके आओ। अगर लीस्ट डिस्टेंस पूछया तो लीस्ट डिस्टेंस करके आओ। अगर थानू नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछया गया है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इनफिनिटी वाला केस करके आओ। ठीक है जी। नैक्सट है बच्चे साडा टैलीस्कोप। सो टैलीस्कोप की बच्चे माइक्रोस्कोप जी मैगनीफिकेशन आ थानू पता होनी चाहिए। लीस्ट डिस्टेंस से बच्चे इन्नी होंदी आ और नॉर्मल एडजस्टमेंट ते सिंपल इन्नी। ठीक है जी। अगर असी नैगेटिव साइन नू निगलैक्ट कर दें तो असी पॉजिटिव की फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं। नैक्सट बच्चे रेजोल्यूशन पावर ऑफ टैलीस्कोप तो रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है। सो बच्चे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता। अगर इन्ना क भी लिख के आने तो बच्चे थोड़ा चल जाएगा काम। सो बट रीसेंट टाइम के बच्चे टैलीस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर आ, रिजॉल्विंग पावर आ, काफ़ी लैस इंपॉर्टेंट आ। अगर तुसी वीक स्टूडेंट आ, स्किप करके जाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सैपरेशन। एंगुलर सैपरेशन बच्चे ये कोई एंगल बनता है थीटा बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which are just resolve when viewed through a telescope। जिदा ही टैलीस्कोप के द्वारा देखा जाता, रिजॉल्व मतलब बच्चे वो गायब हो जाता है। इसका मतलब 1/θ के रेसिप्रोकल आ। थीटा की वैल्यू कितनी होंगी आ 1.22 लैमडा डिवाइडेड बाय डी। सो ये आ गई थोड़ी रिजॉल्विंग पावर ऑफ telescope। So wavelength of light comes from object, the diameter of object of the telescope। ठीक है। सो इसी तरह एक बच्चे माइक्रोस्कोप है। दैन आ जो साडी वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होने लगी है। वेव ऑप्टिक्स का बच्चे क्वेश्चन असी पढ़ांगे। फस्ट आ वेव नेचर ऑफ लाइट। नेचर किद्दां दी हो सकती है बच्चे, 3 तरह की हो सकती है, सफेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ते सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नैक्सट आ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की आ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की है बच्चे जो 2 लाइट्स आपस में मिक्स हो जान, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव ते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो इकट्ठियां हो जान, सुपर इंपोज हो जान, उन्होंने असी की कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इहदियां बच्चे कंडीशंस आ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सो नंबर 1 की आ लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। 2 लाइट वेव्स शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड। 2 लाइट वेव्स शुड मूव वेरी नियर इन अ सेम डायरेक्शन। 2 लाइट्स शुड बी कोहरेंट। कोहरेंट मतलब भी जड़ियाँ लाइट्स आ बच्चे मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनो मीनस सिंगल क्रोमैटिक वो होनी चाहिए। वह एम्पलीट्यूड बच्चे दोनों का इक्वल होना चाहिए, सेम डायरैक्शन होनी चाहिए। सो दीज लाइट सोर्स विच हैव कॉन्सटेंट फेज डिफरेंस इज़ कॉल्ड कोहरेंट सोर्स। वो वाला ये बच्चे कोहरेंट का मतलब की आ 2 लाइट सोर्सिस जिन्हों का फेज डिफरेंस जोड़ा बच्चे फाई की वैल्यू आ वाला फेज डिफरेंस आ वो कॉन्सटेंट होवे, सेम होवे दोनों का। ठीक है जी। सो ये बच्चे इंपॉर्टेंट आ। कोहरेंट सोर्सिस बच्चे बहुत केयरफुली तुसी लर्न करनिया आ। सो ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती आ। सो फेज डिफरेंस ते पाथ डिफरेंस 2 चीज़ां होंदियां आ जो कि बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। कई बार एग्जाम के पूछ लिया जाता कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दसो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दसो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अलग तो पूछा जा सकता है। ठीक है कि पाथ डिफरेंस कितना होंदा, फेज डिफरेंस कितना होंदा, फाई इज 2n लैमडा और पाथ डिफरेंस कितना होंदा है n लैमडा। नैक्सट आ जाओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली बच्चे ये भी फाई और लैमडा की वैल्यू जी तुसी लर्न करनी आ। नैक्सट आ जाओ फ्रिंज विर्थ। बच्चे फ्रिंज विर्थ असी कोई भी निकालिए, कंस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव की, किसी की भी, साडा जो बीटा का आंसर है हमेशा सेम आएगा, लैमडा d/d। ठीक है जी। सो डायग्राम बच्चे असी आर्टिकल के कर लाँगे। आ चीज़ां तुसी जड़ियां स्किप कर सकते हैं। आ चीज़ां जस्ट एक बारी देख लो, तेनों असी स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे साडा लॉन्ग आर्टिकल ही आएगा, शॉर्ट आर्टिकल बच्चे साडा नहीं आ सकता। नैक्सट आ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि आ इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेशनर।
The bending of light from the edges of the obstacle or aperture is known as a diffraction of light। मान लो बच्चे साडे को कोई मिरर आ जा कोई इस तरीके का जिहड़े दे कॉर्नर दे विचों रिफ्लैक्ट होके ठीक है टकराए और शैडो जाके बना देना। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ठीक है। सो साडी एजिस तो ही होया साडे विचों तां रे ऑफ लाइट पास नहीं हुई जो एजिस दे नाल टकरा के कुछ कह लो पैटर्न बन जाए सो उस पैटर्न नूं असीं कह दिंदे हां डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है जी। स्मॉलर इज़ द साइज़ ऑफ अपर्चर मोर विल विद द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जे बच्चे साइज़ छोटा आ तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होएगी। लार्जर द वेवलेंथ ऑफ लाइट जिन्नी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होएगी डिफ्रैक्शन उन्नी ज़्यादा बच्चे नीट एंड क्लीन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जे असीं रैड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा आ जो उहदे नाल बच्चे एक्सपैरीमेंट करते हैं तो ज़्यादा सोहना एक्सपैरीमेंट होएगा एज़ कंपैरेटिव टू ब्लू लाइट यूज़ करना या वायलेट लाइट यूज़ करनी। Since wavelength of sound is much more than the wavelength of light, hence diffraction of sound is much more than diffraction of light। क्योंकि बच्चे साउंड की जी वेवलेंथ आ वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगी है जे काफ़ी ज़्यादा है तो डिफ्रैक्शन भी जी काफ़ी ज़्यादा होएगी। सिमिलरली बच्चे नैरो स्लेटा तो साडे को वैल्यूज़ कितनियां होणगियां आ वाला पोर्शन तुसीं स्किप कर सकते हो शॉर्ट दे विच नहीं आ सकता। नैक्सट आ बच्चे पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिहड़ा कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आ। हुण पोलराइजेशन लाइट है कि आ लाइट इज़ अ ट्रांसवर्सल वेव आ बच्चे जिहड़ी कि कंसिस्ट करदी आ ऑफ वाइब्रेटिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन ऑर्डनरी लाइट। अगर असीं ऑर्डनरी मतलब सिंपल लाइट लैंदे आ तो वाइब्रेशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन ऑल डायरैक्शन। जिहड़ी वाइब्रेशन आ बच्चे एक कंपोनेंट आ एक कंपोनेंट च सारे कंपोनेंट हुंदे आ राइट लैफ्ट उपर नीचे सारे कंपोनेंट। सो वाइब्रेशन ऑफ लाइट मतलब सारे कंपोनेंट आ विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जिधर नूं लाइट प्रोपेगेट कर रही है प्रोपेगेट का मतलब होंदा वाइब्रेट करना जिधर नूं लाइट वाइब्रेट करदी आ उस डायरैक्शन दे परपेंडिकुलर होएगी तुहाडियां वाइब्रेशन ऑफ लाइट मतलब कि सारे कंपोनेंट्स। सच लाइट इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट जिहदे विच बच्चे सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होण उस लाइट दे कंपोनेंट नूं असीं की बोलदे हां अनपोलराइज्ड लाइट। सो बच्चे पोलराइजेशन ऑफ लाइट अगर सिर्फ इन्ना ही कर लो शॉर्ट विच भी कर लो तां भी चलेगा। वैन वाइब्रेशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन अगर एक ही प्लेन दे विच बच्चे वाइब्रेशन अकर कर रही है उन्होंने असीं कह दिंदे हां प्लेन ऑफ लाइट ठीक है बच्चे। आ आर्टिकल जिहड़ा मॉडर्न दी बुक दे विच भी बहुत सोहना दिता होया आ। हेयर द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पोलराइजिंग लाइट टेक्स प्लेस इज़ नोन एज अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिहदे विच वाइब्रेशन अकर करदी है हुण उन्होंने असीं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोल दिंदे हां। एंड the plane normal to it and contains direction of propagation is called plane of polarization। सो जिहदे विच बच्चे प्लेन नॉर्मल होवे ते डायरैक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों ऐड होण ठीक है उन्होंने असीं की कह दांगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ठीक है जी। सो द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ वाइब्रेशन अराउंड द डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। सो बच्चे जिहड़ी साडी डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आंदी आ सो वाइब्रेट करती हुई उन्होंने असीं कह दिंदे हां पोलराइजेशन ठीक है जी। सो बच्चे एक बारी आ वाली थियोरी जिहड़ी आ तुसीं ध्यान नाल पढ़ लैणी आ वीडियो नूं पॉज कर लो ध्यान नाल बच्चे रीड आउट कर लो लर्न कर लो इनू इंपॉर्टेंट आ बच्चे आर्टिकल। नैक्सट ते चलदे आ बवेस्टर्स लॉ विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द लाइट रिफ्लैक्ट बाय अ सरफेस इज़ पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। हुण बच्चे पार्शियली प्लेस्ड मतलब जिद्दां ही रे ऑफ लाइट आई टकराई कुछ कंपोनेंट्स इधर नूं चले गए कुछ कंपोनेंट्स इधर चले गए। सो इन्हों असीं कह दिता कि पार्शियली पोलराइज्ड कुछ पोलराइज्ड होगी बाकी नहीं हुई। सो जिहड़ा आ वाला एंगल है इनू बच्चे की कह दिंदे आ पोलराइजिंग एंगल जिहड़ा तुहाडा एंगल बनदा आ इंसीडेंस एंगल आ इनू असीं कह दिंदे आ पोलराइजिंग एंगल और बवेस्टर्स एंगल ठीक है। सो बच्चे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किहदे इक्वल हुंदा आ म्यू इज़ इक्वल्स टू 10 IP मतलब तुहाडा इंसीडेंट एंगल ठीक है जी। सो नैक्सट आ जाओ बच्चे। सो आ बच्चे सानू पंजाब बोर्ड वालिਆਂ ਨੂੰ लर्न करन ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ਆਪਾਂ डायरैक्ट आर्टिकल ही लर्न करांगे। सो पोलराइजर्स की हुंदे आ पोलराइजर्स की हुंदे आ बच्चे वीडियो ਨੂੰ पॉज करो एक बारी लर्न कर लो इनू ठीक है।
सो नैक्सट आ जाओ मालस लॉ विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट बट थोड़े सैंपल पेपर च देखा गया है ये। सो क्योंकि सैंपल पेपर च आया तो असीं बिल्कुल भी छड्ड के नहीं जाना। सैंपल पेपर का कोई भी क्वेश्चन बच्चे ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ I इज इक्वल्स टू I नॉट cos square थीटा। I मतलब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजिंग लाइट तो I नॉट इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजिंग लाइट है। ठीक है, एक बच्चे एनालाइजर आ तो एक पोलराइजर। I एनालाइजर दे लिए है और I नॉट पोलराइजर ली। थीटा की है एंगल बिटवीन एनालाइजर और पोलराइजर, आ दोनों के विचकारला एंगल। ठीक है, अगर इन्ना भी लिख के आऊँगे बच्चे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो चलो बच्चे ये सी साडी क्विक रिविजन। इस तो बाद आप स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सो बच्चे आई थिंक इस वीडियो काफ़ी लेंथी चली जाएगी क्योंकि बच्चे इत्थे तक ही कह लो अपना 34 मिनट की वीडियो बन चुकी आ। सो बच्चे मैं ट्राई करती हाँ कि 1 और 2 मार्क्स के लिए वीडियो अलग तो बना दिया तो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अलग तो बना देव। सो ट्राई करदी हाँ बच्चे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो तुसी भी थोड़ा बोर हो जूंगे। सो आप गैप पा के पढ़ लांगे। ठीक है, सो चलो बच्चे नैक्सट स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चनस। सो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चनस। सो बच्चे काफ़ी सारे बच्चे सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि मैम इन्ने ही क्वेश्चन सफिशिएंट आ। बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन घट्टो घट्ट आप करन लगे हाँ कुछ 100 या 150। ठीक है, 120 के करीब बच्चे साडे क्वेश्चन आ। सो इन्ने ही करके जाऊँगे बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपैक्टेड क्वेश्चन एक्सैक्ट्रा सारे कुछ मिल जाएंगे। हाँ जिदा नॉन मैडिकल वाले आ बच्चे थोड़े को वाधू टाइम आ। अगर रिविजन वाले दिन बच्चे थोड़े तो कोई होर कह लो मेन बुक आ एक्सैक्ट्रा जोड़ा तुसी पढ़ सकते हैं। सो जिदा ही अपना बच्चे चैप्टर कंप्लीट होएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे बच्चे थानू सोल्यूशन के लिए भी टैस्ट के लिए भी अलग तो जी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तुसी बच्चे वो भी देख सकते हो, भी कह लो उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उतों पता लग जाएगा कि साडी कितनी की तैयारी है, सानू होर कितनी तैयारी की जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसीपल एक्सिस ऑफ सफेरिकल मिरर। हुण सफेरिकल मिरर का बच्चे प्रिंसीपल एक्सिस दसना है कि की हुंदा। हुण सफेरिकल मिरर सानू पता है कि मिरर एक इदां दा चाहे अंदरों कह लो पेंट होवे चाहे बाहरों पेंट होवे। हुण प्रिंसीपल एक्सिस की आ कोई एक स्ट्रेट लाइन जिहड़ी उहदे पोल दे विचों बच्चे पास होके जांदी होवे, पोल और सेंटर ऑफ करवेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ करवेचर जो पास होके जांदी होवे इदां दी बच्चे लाइन नू स्ट्रेट लाइन नू असीं की बोलदे हां प्रिंसीपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग या ज्वाइनिंग द पोल ऑफ अ मिरर एंड सेंटर ऑफ करवेचर एंड एक्सटेंड ऑन अ बोथ साइड। दोनों तरफ असी एक्सटेंड कर दिए उन्होंने असी की बोल दें प्रिंसीपल एक्सिस। नैक्सट आ डज साइज ऑफ मिरर इफेक्ट द नेचर ऑफ इमेज। की मिरर का साइज बच्चे नेचर तो इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मान लो हुण तुहाडे घर विच बच्चे छोटा जिहा शीशा आ। ठीक है, अगर बच्चे साइज़ मिरर का छोटा है तुहानूं वध तो वध अपना फेस दिख जाएगा। ये तो नहीं कि तुहानूं पूरी बॉडी दिखती है छोटी होके, नहीं दिखती जिहड़ा सिंपल मिरर हुंदा। हुण साइज़ थोड़ा वड्डा कर लूँगे तो बच्चे कह लो तुहानूं फर्दर पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाऊगा। अगर पूरा प्रॉपर लंबा वाला मिरर लओगे तो कह लो सिर तो लैके पैर तक सानू सारी बॉडी दिखाई देगी। सो ਇਹਦਾ मतलब कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। अगर मिरर छोटा है तो सानू कह लो फेस कला फेस दिखाई दे जाएगा, अगर प्रॉपर वड्डा है तो प्रॉपर बॉडी दिखाई दे जाएगी। नैक्सट आ डिफाइन रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट की आ एक स्ट्रेट लाइन आ पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रैवल्स कॉल्ड रे ऑफ लाइट। बच्चे सिंपल डेफिनेशन है, इन्होंने कोई भी क्वेश्चन हाले तक इंपॉर्टेंट नहीं आ। अगर तुसी फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जिहड़ी चीज़ां मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है वो छड्ड दो, जिहड़ियां चीज़ां इंपॉर्टेंट आ सिर्फ वो पढ़ लो अगर तुहानूं फिजिक्स औखी लगदी आ। वट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर बच्चे इंपॉर्टेंट आ, दैट इज़ इनफिनिटी। ठीक है, इनफिनिटी जिहड़ी आ बच्चे दा मेन आंसर है। नैक्सट आ जाओ विच मिरर इज़ यूज एज अ रियल व्यू मिरर। रियल व्यू मिरर बच्चे असीं किहड़ा यूज़ करते हैं? कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स मिरर एक इदां दा मिरर आ जिन्हों असीं रियल व्यू मिरर विच यूज़ करते हैं। वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर विच बच्चे जिहड़ी साडी फोटो बनती है, साडी सामने तस्वीर बनती है, वो किद्दां दी हुंदी आ? पहली गल वो झूठी मूठी आ, वर्चुअल है, सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिद्दां दा ऑब्जेक्ट का साइज़ आ सेम उद्दां दा ही बनता है।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਨ ਏਅਰ ਬਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਬਬਲ ਆ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬਬਲ ਆ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ of a liquid of refractive index greater than the refractive index of the lens, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਕੈਨ ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ C ਓਵਰ ਬੱਚੇ C ਓਵਰ V ਆ, C ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ V ਨਾਲੋਂ, ਸੋ C ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗੀ V ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਸ ਵਿਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲੈਂਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, what is the essential condition for observing the rainbow। ਬੱਚੇ ਰੇਨਬੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। The essential conditions for observing a rainbow is that the observer must stand with his back towards the sun। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਖੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਅੱਖ ਆ ਉਹ ਰੇਨਬੋ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਸਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਟੇਟ ਲਾਜ਼ relay law of scattering, which is the most important definition. This law states that intensity of scattered light is inversely proportional to 1/4 power of wavelength of light. So 1 is inversely proportional to I is intensity of light is inversely proportional to lambda raised to power 4। but ਇਸ relay law of scattering ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਾਈ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਕਿਉਂ ਕਲਰ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਨ ਆ ਉਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਮਾਰਕਸ ਆਵੇ ਨਾ, ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਧਾ 1 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇ ਲਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ।
सो ਇਹਦਾ मतलब दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो तुसी ये याद करना ही करना आ। सो इनू अच्छे तरीके नाल लर्न कर लो। नैक्सट आ डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म की आ बच्चे, डिस्पर्सिव पावर या डिस्पर्जन पावर की आ। सो बच्चे जो मैं टैसट लिता सी, मैं उहदे विच भी ये डेफिनेशन पाई सी, उत्थे भी ये चीज़ क्लीयर की सी कि इट इज़ द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन थ्रू प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। सो काफ़ी बच्चों ने ये मैथेमैटिकल पोर्शन भी लिखा सीगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा। अगर इस तरीके ना भी लिख के आने बच्चे तो भी मैथेमैटिकल पोर्शन ट्राई करो कि फिजिक्स के जिन्ना मैथेमैटिकल पोर्शन लिख सकते हैं मैक्सीमम लिख दो, जिन्नियां मैक्सीमम डायग्राम्स बना सकते हैं डायग्राम्स बना दो। विच कलर डिफलैक्ट मोस्ट, सब तो ज़्यादा कलर डिफलैक्ट कौन करता है? सो बच्चे जिहदा लैमडा ज़्यादा होएगा, ठीक है, लैमडा किहदा हुंदा? रैड दा। सो ये रेसिप्रोकल आ साडा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। सो उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट होएगा, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट आ उहदा डेल्टा घट आ। मतलब उन्होंने कहा सब तो ज़्यादा जिहड़ा डिफलैक्ट कौन होएगा। सो असी बच्चे रैड लाइट तो शुरू करते हैं। रैड लाइट की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा आ, मतलब ये डिफलैक्ट सब तो घट होएगा, ठीक है जी। सो इसदा आंसर आ जाएगा जिहड़ा घट डिफलैक्ट करेगा वो कौन आ? रैड लाइट, सॉरी वायलट कलर डिफलैक्ट मोस्ट, ठीक है। हाँ बच्चे मैं उल्टा बोल दिता, रैड लाइट सब तो घट डिफलैक्ट करेगा तो वायलट लाइट सब तो वध डिफलैक्ट करेगा, सही बोल रही सी। सो नैक्सट आ लीस्ट, सब तो घट डिफलैक्ट कौन करेगा? वायलट करेगा। क्लीयर हो गया जी। वाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू। हुण देखो बच्चे आही क्वेश्चन जिहड़ा मैं उत्ते गल कर रही सी कि तुसी रिले स्कैटरिंग जिहड़ा आ तुसी लिख के आना आ। सो बच्चे आ रिले स्कैटरिंग तुसी इहदे विच उदों लिख के आना जदों 2 मार्क्स का क्वेश्चन आवे। सो 1 मार्क्स का आ क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का आ क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन बच्चे 1 मार्क्स का आंदा आ, बहुत रेयर चांसिस आ कि जिहड़ा ब्लू कलर आ एक्सैक्ट्रा आ ये बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आवे, अदरवाइज 2 मार्क्स का ही आंदा आ। वैन लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स एटमोसफेयर, जिद्दां ही एटमोसफेयर के अंदर एंटर करता, दैन ब्लू वायलट कलर स्कैटर टू मच ड्यू टू देयर स्मॉलर वेवलेंथ, दैट इज़ वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, जिहदे करके जिहड़ा तुहाडा स्काई आ वो ब्लू कलर का दिखाई दिंदा आ। क्लीयर हो गया जी। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया बच्चे ये साडे सिलेबस दे विच नहीं आ, सो इनू स्किप कर सकते हैं। नैक्सट आ जो वेव फ्रंट की आ, वेव फ्रंट इज़ अ लोकस ऑफ पार्टिकल। लोकस मतलब पर्टिकुलर कोई पॉइंट आ किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेट इन अ सेम फेज। मान लो बच्चे इत्थे आ पॉइंट, ठीक है, इत्थे अपना एक लोकस ले लिया सेंटर पॉइंट, इत्थे एक लोकस ले लिया, ठीक है, सेंटर पॉइंट। सो उहदी जो वाइब्रेशन होएगी इधर नूं वाइब्रेशन होएगी सारे पासे नूं बच्चे सेम फेज दे विच होएगी, किहदे विच होएगी? सेम फेज दे विच होएगी। हुण आइदर मीडियम की आ, इधर मीडियम, इधर इज़ अ हाइपोथेटिकल बच्चे ये मीडियम आ विच पोजेस वेरी लो डेंसिटी, जिहदी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा घट होएगी और लार्ज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी दी वॉल्यूम जिहड़ा आ मतलब अगर उन्होंने स्ट्रैच करना चाहते हैं तो असीं स्ट्रैच कर सकते हैं। सो दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट, सो अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नैक्सट आ वट इज़ द असेंशियल कंडीशनस फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दियां बच्चे असेंशियल कंडीशनस की आ, सो लेस इंपॉर्टेंट आ, पढ़ लो एक बारी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ओनली वैन साइज ऑफ ऑब्सटैकल। ऑब्सटैकल मतलब जो तुसी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिन्नी तुसी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करोगे उन्ना ही तुहाडा जिहड़ा ऑब्सटैकल आ वो तुसी यूज़ करोगे। नैक्सट आ वट इन्फॉर्मेशन डज वन ऑबटेन फ्रॉम पोलराइजिंग अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। सो बच्चे पोलराइजेशन जी असी प्रोसैस करते हैं प्रॉपर, उतो असी नेचर ऑफ लाइट बारे की सीखिया कि जी साडी लाइट आ, रे ऑफ लाइट जी पास हो रही है वो किहड़ी आ? ट्रांसवर्जल इन नेचर आ। ट्रांसवर्जल मतलब दो लाइटा एक दूसरे नूं आपस में टकरा सकदियां, जो टकरा गई इंटरफेरेंस हो जाएगी। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। सो पूरे एक्सपैरीमेंट तो पोलराइजेशन दे विच पूरे एक्सपैरीमेंट तो सानू ये क्लीयर हो गया कि जी रे ऑफ लाइट आ वो की आ? ट्रांसवर्जल इन नेचर। नैक्सट क्वेश्चन इज डिफाइन प्लेन पोलराइजिंग लाइट। बच्चे ये असी क्विक रिविजन च पढ़ चुके हैं। कन्वैक्स मिरर नूं ड्राइवर मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधी और स्मॉल इमेज बनती है और बच्चे ये लार्ज व्यू जो एको ही मिरर के सानू दिखाई दे दिंदा। और ये ड्रॉबैक की आ? ड्रॉबैक की आ बच्चे तुसी अपना हुणे जाके अपनी स्कूटी मोटरसाइकिल का शीशा देख के आओ, उत्थे कोई लाइन लिखी हुई है, उत्थे ऑलवेज लिखिया हुंदा कि ऑब्जेक्ट इज़
ਨੀਅਰਰ ਦੈਨ ਅਪੇਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮਿਰਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮਿਰਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਰੈਕਟ, ਵਰਚੁਅਲ, ਇਰੈਕਟ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 2-4 ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਟ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ μ2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ μ1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ μ2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਸ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਆ μ1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਜਾਂ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 2.47 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 24 ਡਿਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ ਟਕਰਾਈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਲੀਵਸ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਫਿਊ ਫੇਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਾਈ ਦ ਸਨ ਲੁਕਸ ਅਪ ਰੈੱਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰ ਕੀ ਆ, ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਸਨ ਅਪੀਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਦ ਫਿਊ ਮਿੰਟ ਵਾਈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। 35, 36, 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਮਾਰਕਸ 100% ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅ ਵਾਟਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਸਿਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। What chance if any do have expect in their respective focal length as comparative to their values। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਉਹਦਾ ਐਫ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਆ ਦੈਨ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ μ2 ਆ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਦ ਮੈਨ ਅਪੀਅਰਸ ਟਾਲ ਔਰ ਸਮੋਲ ਸਟੈਂਡ ਐਟ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਲੇਕ मतलब कि ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੋਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਣਾ, ਅਗਰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨੋਰਮਲ। ਅਗਰ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ। ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਥਿਨ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥਿਨ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ ਔਨ ਵਿਚ ਅ layer of material having refractive index less than the glass or quartz is known as a optical fiber। ਸੋ ਬੱਚੇ optical fiber ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is total internal reflection। ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਨ ਦ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਔਨ ਅ 1 ਐਂਡ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਆਫ ਅ ਫਾਈਬਰ ਐਟ ਅ ਸਮੋਲ ਐਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਸਮੋਲ ਐਂਗਲ। The light passing inside it suffered multiple total internal reflection inside it। ਸੋ ਬੱਚੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਕਲੇਟਿੰਗ ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਫਾਈਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਂਡ ਔਰ ਕਰਵਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਬਰ ਬੱਚੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੱਚੇ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। then sky appears dark, rainbow is never formed। so ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। next ਆ why is there no dispersion of light refracting through the rectangular glass prism। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ 'ਚ 7 ਕਲਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ μ - 1 A। ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 0 ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ μ - 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਈ ਡੇਂਜਰ ਸਿਗਨਲ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ
ज़्यादा आ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होएगी बच्चे इत्थे भी रिले स्कैटरिंग तुसीं लिख के आनी आ, आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 लैमडा रेज़ टू पावर 4। अगर लैमडा बहुत ज़्यादा आ तो स्कैटर घट होएगा। सो रैड लाइट बच्चे स्कैटर, इस करके जिहड़ा असी लेज़र लाइट्स वगैरह यूज़ करते ना, आप बचपन तो ही खेलते आ रहे हैं लेज़र लाइट्स के नाल। सो लेज़र लाइट हमेशा रैड कलर की ही क्यों यूज़ होंदी आ, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होंदी। अगर असी ब्लू कलर की वायलट कलर की यूज़ करते हैं तो रेज़ ऑफ लाइट ने स्कैटर हो जाना, दूर तक नहीं पहुँचना। सो इस करके ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਖਿਲਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਸਕੈਟਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। मतलब कि ठीक है 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आ जाएगा, बट अगर तुसी 2 चों 2 मार्क्स लैने तो तुहानू प्रॉपर इन्नी थियरी लिखनी पएगी। नैक्सट आ जाओ बच्चे रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप दे विच डिफरेंस दसना है। सो बच्चे तुसी एक बारी पढ़ लेना। नैक्सट आ नैसेसरी कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। सो जिहड़ियां बच्चे असी कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल की आ, 2 सोर्सिस शुड एमिट द लाइट कॉन्टीन्यूसली, दोनों के विचों जिहड़ी लाइट आ वो कॉन्टीन्यूसली बाहर निकलती होवे, सेम वेवलेंथ की होवे, और दोनों के विचकार बच्चे जिहड़ा फेज डिफरेंस आ वो सेम होवे या फिर कॉन्सटेंट होवे। नैक्सट आ जाओ प्रूव दैट ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइट इज़ ओबेड। सो बच्चे ये जिहड़ा क्वेश्चन है सो इंपॉर्टेंट भी आ, नहीं भी इंपॉर्टेंट। सो वीक बच्चे छड्ड सकते हैं, जिहड़े इंटैलीजेंट बच्चे आ बच्चे वो अच्छे तरीके नाल पढ़ के जान कि फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की आ। इहदे विच बच्चे 2 कोहरेंट सोर्सिस असी यूज़ करते हैं, S1 S2, जिहदे विचों लाइट बाहर निकलती आ। इहदा मतलब S1 दे विचों जिहड़ी लाइट बाहर निकलूगी उहदी इंटैंसिटी कितनी है I1, और S2 दे विचों जिहड़ी लाइट बच्चे बाहर निकल रही उहदी इंटैंसिटी कितनी होएगी I2। सो टोटल बच्चे जिहड़ी आ इंटरफेरेंस कितनी होएगी, क्योंकि इत्थे बच्चे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही हले तक। इफ़ देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव दैन इंटेंसिटी असी टोटल कर दी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। एक्चुअली बच्चे ये आर्टिकल स्मॉल आर्टिकल असी चक्या आ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उहदा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट तो अगे थोड़ा जिहा मॉडिफाई किया होया। सो उत्थे बच्चे आंसर आया सीगा साडा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos थीटा। हुण आई की वैल्यू मैक्सीमम कदों होएगी जो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जूगी 1, और मिनीमम कदों होएगी जो cos फाई की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है जी। एवरेज किद्दां निकालांगे, मैक्सीमम प्लस मिनीमम डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गई बच्चे थोड़ी एवरेज वैल्यू। ठीक है। सो जस्ट एक बारी बच्चे नूं रीड आउट कर लेना है, थोड़ा जिहा लैस इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट आ कंपैरिजन करना बच्चे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे विच। सो बच्चे जो भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आवे सेंटर से लाइन मार के करो। ठीक है, लाइन लगा के करोगे वो ज़्यादा कह लो अट्रैक्टिव लगता है आंसर। नैक्सट आ राइट द कंडीशंस फॉर 2 लाइट सोर्सिस टू बी कोहरेंट कदों होंदियां बच्चे ऑलरेडी असी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की जिहड़ी तुसी डिफरेंस आ ये भी बच्चे असी कर चुके हैं। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कदों अकर करता जो ऑब्सटैकल या अपर्चर जिहड़ा लैस होना चाहिए आ। बवेस्टर्स लॉ सी पोलराइजेशन पोलराइडर्स। सो बच्चे ये सारे असी जिहड़े आ शॉर्ट दे विच पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बच्चे वीडियो नूं पॉज करके नाल दी नाल ही लर्न कर लो ये सारे क्वेश्चन, ताकि वीडियो तो बाद सानू दोबारा बुक चक्कन की जरूरत ना पवे। इस तो बाद जिहड़े बच्चे तुहानूं मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करांगी टेस्ट दे लई, वो डायरैक्ट जदों तुसीं उहनूं सॉल्व करोगे तो तुहानूं वो आंदे होने चाहिए आ। सो जिन्ने भी बच्चे तुहानूं क्वेश्चंस करवा रही हैं ये नाल दी नाल ही लर्न कर लो। ठीक है जी। सो ये तो हो गए बच्चे तुहाडे क्वेश्चंस। नैक्सट आ जाओ हुण फॉर्मेशन ऑफ मिराज। बच्चे दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मिराज की आ। हुण बच्चे ऑप्टिकल फाइबर मिराज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये बच्चे तुसी प्रॉपर डायग्राम बना के आनी है। ठीक है, इत्थे डायग्राम नहीं बनी हुई, तुसी प्रॉपर डायग्राम बना के आनी है। किस तरह नाल मान लो कि आ ट्री आ। ठीक है,
रेज ऑफ लाइट बच्चे आईयां टकराई तो जी थोनों इत्थे उल्ट जड़ा ट्री दिखाई दिंदा आ। सो इत्थे लेयर्स बना देनियां तुसी टकराई, ठीक है। सो इत्थे जाके जिथे भी टकराई रे ऑफ लाइट बच्चे किते ना किते वापस जाएगी इधर नूं। सो इनू पिछे वाले इनक्रीज़ किया, जिथे भी पिछे वाले इनक्रीज़ किया उत्थे तुहाडी इमेज आ जाऊगी। इत्थे तुसी आईज़ बना सकते हैं कि इत्थे जड़ा आ सो जिहड़े बच्चे डेजर्ट एरियाज़ हुंदे उत्थे सानूं इल्यूशन हुंदा आ कि एक्चुअल दे विच उत्थे पानी हुंदा नहीं आ, बट सानूं परछावां दिखाई दिंदा, इस करके सानूं लगदा कि उत्थे पानी हैगा आ। मिराज इज़ एन ऑप्टिकल फिनोमिना विच क्रिएट्स एन इल्यूशन मतलब एक भुलेखा जिहा प्रेजेंट सानूं पा दिंदा आ कि जिहड़ा डेजर्ट एरियाज़ आ, जिहड़े ड्राई एरियाज़ आ, उत्थे मिराज मतलब सानूं इल्यूशन हुंदी आ। सो इहदा कारण की आ? कारण बच्चे इहदा ये आ कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हुंदी आ, क्योंकि उत्थे लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हुंदी आ। सो बहुत ज़्यादा लेयर्स होने करके जिहड़ी बच्चे धरती दे नेड़े वाली लेयर आ वो हॉटर आ, जिद्दां जिद्दां उपर जांदे जावांगे डेंसर हुंदियां जाणगियां। सो रेयर टू डेंसर मतलब कि डेंसर टू रेयर जिहड़ी आ तुहाडी रेज ऑफ लाइट बेंड हुंदी आ रही आ। उपर वाली की आ डेंसर, डेंसर टू रेयर जाएगी तां डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, अगेन नॉर्मल टू द, ठीक है, नॉर्मल तो अवे हो जाएगी। सो इदा करते करते बच्चे कितनी बारी जड़ा आ रिफ्लैक्शन होएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होएगा। सो जिहदी वजह नाल जड़ा आ सानूं उत्थे इल्यूशन हुंदा आ। सो एक्सप्लेनेशन बच्चे एक बार अच्छी तरीके नाल पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सारे बच्चे 1-1 मार्क्स के इदा दे क्वेश्चनस आ। सो ये बच्चे आप एक जस्ट एक बार जड़े इन्हों अच्छी तरीके नाल रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय अ कन्वैक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। सो वर्चुअल इमेज बच्चे कनकेव ते कन्वैक्स की तुसी कंपेयर करनी आ। सो बच्चे डायग्राम्स तुसी बनाइयां होणगियां, ठीक है, मिरर्स दियां। सो आ की है बच्चे कनकेव, कनकेव विच आई टकराई तो वापस चलेगी फोकस दे विच, ठीक है। सो ये बच्चे तुहाडियां की आ कन्वैक्स दे विच जिहड़ा स्कूटी दा शीशा हुंदा उहदे विच साडी स्मॉल इमेज बनदी आ, वर्चुअल बनदी आ। कनकेव दे विच मैगनीफाइड वड्डी इमेज बनदी आ। नैक्सट आ वाई वाइट लाइट इज़ डिस्पर्सड वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म चो जो टकराई 7 कलर्स क्यों टुटी? सो बच्चे क्योंकि जिहड़ी फ्रिक्वेंसी आ वेवलेंथ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी आ, ठीक है। वाइट लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि बच्चे कल्ले कल्ले कलर का जोड़ा वेवलेंथ डिफरेंट आ तो डिफरेंट ही डिफ्लैक्ट करेगी। वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म द मटीरियल एंड द शेप ऑफ द प्रिज्म ऑफ अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। सो प्रिज्म बच्चे एक्ट करेगा, उन्हें अलग अलग वेवलेंथ नूं अलग अलग स्पीड ते अलग अलग एंगल दे नाल बेंड कर देना। सो अलग अलग बच्चे एंगल ते बेंड करेगा तो उत्थों कलर अलग अलग निकल के बाहर आएंगे। सो असी उन्होंने की कह देंगे कि उत्थे जाके डिस्पर्ज हो गया या थोड़े 7 कलर्स दे विच टुट गया। बच्चे नैक्सट क्वेश्चन सिंपल आ 76 जोड़ा साडे सिलेबस दे विच हुण नहीं आ, सो असी ये नहीं पढ़ांगे। नैक्सट आ जाओ लाइट ट्रैवल इन अ मीडियम विद वेलोसिटी एनी। बच्चे वेलोसिटी सानू पता है, सैकेंड मीडियम जोड़ा है सानू वो पता है। फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय सैकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम ऊपर सैकेंड मीडियम नीचे। 10⁻8 ना कटिया गया 3.2 मतलब 1.5 जोड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो बच्चे तुसी बहुत अच्छी तरीके नाल क्वेश्चन लर्न करके जाने हैं। सो जिद्दां जिद्दां पढ़ांदी जा रही हैं बच्चे नाल दी नाल वीडियो नूं पॉज करके नूं लर्न करते जाओ। वट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बच्चे बेसिक कॉज की आ कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम के जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पीड चेंज होंदी है तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। सो ये बेसिक कॉज आ। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे सिंपल आ। हुण आ जाओ लाइट ऑफ वेव 5000 ऑक्सटॉन इन एयर एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 वट विल बी द फ्रिक्वेंसी? बच्चे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला की होंदा है म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर लैमडा। सी की वैल्यू स्टैंडर्ड आ, लैमडा जोड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ बच्चे तुहाडा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सानू लैमडा आ सॉरी लैमडा बच्चे सानू गिवन आ 5000 ऑक्सटॉन। सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 ऑक्सटॉन। सो आ गया 5 × 10⁻⁻7। सो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10⁻⁻7 और सी की वैल्यू 3 × 10⁻8। सो इनू सॉल्व कर लो, जोड़ा थोड़ा आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चनस बच्चे असी शॉर्ट दे विच ही पढ़ चुके हैं। सो बार बार बच्चे उही क्वेश्चन जोड़े आ रिपीट हो रहे आ। सो बच्चे आ देखो हुण इत्थे ब्लूइश कलर लिखा होया, इत्थे खुद उन्होंने एक्सप्लेन किया होया इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे नाल
सो तुसी बच्चे जरूर ये टर्म्स जड़ियाँ आ लिख के आनियाँ आ। सो इन्होंने क्वेश्चन में बच्चे अच्छे तरीके नाल लर्न कर लो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे अदरवाइज कितों भी आ सकता, बट कैमिस्ट्री का पेपर बच्चे टोटली 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारा ही एक्यूरेट दी बुक दे विचों आया। सो बच्चे असी एक्यूरेट दी बुक का कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा आ स्किप करके नहीं जाना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न करके जावांगे। ठीक है जी। सो ये बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ, सो इन्हों अच्छी तरीके नाल रीड आउट कर लो ताकि अगर ये कोई क्वेश्चन आता तो बच्चे सानू कोई भी इदां दा क्वेश्चन ना होवे जिहड़ा ना आंदा होवे। सो बच्चे हुण स्टार्ट करांगे 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चनस। बच्चे जिन्ना असी हुण तक पढ़ लिया इन्ना पढ़ के बच्चे साडे जिहड़े आ ऑप्टिक्स ते तुसीं देख सकदे आ 1 मार्क्स के बच्चे 2 क्वेश्चन आउणगे, साडे 2 नंबर इत्थों पक्के। 2 मार्क्स के बच्चे एक थियोरी क्वेश्चन आएगा, अगर असी न्यूमैरिकल स्किप करते हैं न्यूमैरिकल बाद चों करांगे। ठीक है, एक थियोरी क्वेश्चन आएगा। एक ये मतलब कि साढ़े 4 मार्क्स जड़े आ बच्चे कह लो भी पक्के हो जाएंगे। हुण 2 मार्क्स के लिए बच्चे सस्टेनेबल हो गया, दैन कोहरेंट सोर्सिस हो गए, दैन बच्चे डायमंड ब्रिलियंट क्यों आ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो बच्चे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, डिफ्रैक्शन जी आ क्यों होंगी आ, प्रिज्म के जड़े आ कलर्स वाले बच्चे क्वेश्चन आ वो आ सकते आ। सो कोई भी क्वेश्चन जोड़े बच्चे 2 मार्क्स के मैं थोड़ा दसे आ, कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं जाना, इन्हों के विचों ही कोई ना कोई बच्चे 2 मार्क्स का जोड़ा क्वेश्चन आ थानू मिल जाएगा। हुण बच्चे असीं स्टार्ट करन लगे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। बच्चे एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमैरिकल आपां लास्ट दे विच करांगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो बच्चे मैं ट्राई करांगी कि न्यूमैरिकल की अलग तो वीडियो बना दा। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन करांगे। हुण बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे लई तुसीं कल्ली रे ऑप्टिक्स चक सकदे आ, वेव नूं निगलैक्ट कर सकदे, बट 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे लई बच्चे सानू वेव ऑप्टिक्स पढ़नी ही पएगी। सो लिमिटेड क्वेश्चन आ बच्चे, हार्डली कह लो 15-20 क्वेश्चन आ जिहड़े असीं बहुत अच्छी तरीके नाल भी पढ़ के जावांगे तो बच्चे साडे आह 8 नंबर पूरे 100% बच्चे पक्का आणगे ही आणगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चनस। सो बच्चे बेटा जी नेक्स्ट असीं स्टार्ट करांगे 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चनस। सो बच्चे सब तो फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस असीं करांगे मिरर फॉर्मूलाज। सो बच्चे मिरर फॉर्मूला साडे 2 आ, एक है कनकेव मिरर और सेकंड वन इज़ अ कन्वैक्स मिरर। सो असीं दोनों केस बच्चे अच्छे तरीके नाल करांगे और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन आने के चांसिस घट आ। सो होपफुली बच्चे जो मिरर फॉर्मूला आ लेंस फॉर्मूला आ बच्चे 3 मार्क्स के अंदर जोड़ा क्वेश्चन आने के चांसिस ज़्यादा आ। सो चलो बच्चे सब तो पहला देखो क्वेश्चन कितना आएगा। राइट अजम्पशंस, साइन कन्वेंशनस एंड ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। सब तो पहला बच्चे तुसी अजम्पशंस लिखने। अजम्पशंस हुंदा आ जड़ियां मनण वालियां चीज़ां आ या जेड़ा ध्यान रखण वालियां चीज़ां आ। नंबर 1 जेड़ा बच्चे तुसी आ साइज़ लओगे मिरर दा, ये की होना चाहिए है स्मॉल, अपर्चर ऑफ द मिरर इज़ स्मॉल। सैकेंड की है जेड़ा बच्चे पी आ डिस्टेंस, सारे दियां सारियां जड़ियां डिस्टेंस आ असी पी तो मैजर करनी, लाइक ऑब्जेक्ट कितनी दूरी ते रखिया, इमेज कित्थे बनी, दैन सेंटर कितना आ। सो जदों भी असी डिस्टेंस मैजर करनी आ पोल तो ही मैजर करांगे। ऑल द डिस्टेंसिस आर मैजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नैक्सट आर डिस्टेंस मैजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जिद्धर नूं रेज ऑफ लाइट बच्चे जा रही आ वो की हुंदा आ पॉजिटिव, तो दूसरे ऑपोजिट साइड ते की हुंदी आ नेगेटिव। या इनू सिंपल लैंग्वेज च जे असी समझना होवे, मिरर दे बिल्कुल सामने रखी हुई चीज़ हमेशा नेगेटिव होएगी तो ऑपोजिट साइड हमेशा ही पॉजिटिव। सो जिद्दां बच्चे हुण इत्थे यू भी इधर वाली साइड ते बन रहा, वी भी इधर बन रहा, एफ भी। इहदा मतलब कि कनकेव मिरर दे केस दे विच यू वी एफ सारा कुछ की हुंदा आ नेगेटिव हुंदा। हुण फोर्थ अजम्पशन देखो, द हाइट मैजर अपवर्ड। अगर बच्चे हाइट उपर आ प्रिंसीपल एक्सिस के उपर आ तो टेकन एज पॉजिटिव, अगर प्रिंसीपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट बन रहा कुछ भी आ तो टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया जी। दैन इंसीडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड रे मेक्स वेरी स्मॉल एंगल विद प्रिंसीपल एक्सिस। जेड़ा बच्चे आई और आर एंगल बनता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल्स होंगे आ। नैक्सट आ जाओ बच्चे, हुण असीं तां जिहड़ा मैथमैटिकल पोर्शन देखना आ, याद रखो एक बारी असीं सी लैना तो एक बारी पी लैना। ध्यान नाल देखो मैं की चीज़ बोल रही हाँ। एक बारी बच्चे सी लैना मतलब कि ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। दूसरी बारी की लेना पी, ए पी बी एंड ए बी पी डैश। ठीक है जी, ए डैश बी डैश पी। हुण देखो ट्रायंगल बन रहा ए बी सी
बन रहा ट्रायंगल बन रहा आ ओके आ ए डैश बी डैश सी ये भी ट्रायंगल बन रहा ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ मतलब कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ਉਹਦਾ ही डिस्टेंस इमेज ओवर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस हुण इत्थे बच्चे इमेज की आ तुहाडी इमेज की आ ए डैश बी डैश बच्चे इमेज चाहे ऑब्जेक्ट लिख लो चाहे ऑब्जेक्ट ओवर इमेज लिख लो कोई फर्क नहीं पैंदा सो ऑब्जेक्ट ओवर इमेज ऑब्जेक्ट की सी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इमेज ऑब्जेक्ट की आ ए बी इमेज की आ ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट की आ ए बी उन्हां दा ही डिस्टेंस लेना आ ए डैश बी डैश का बच्चे डिस्टेंस जिहड़ा इन्ना का छोटा जिहा सो असी की लवांगे सी ए डैश डिवाइडेड बाय दूसरी ट्रायंगल का बच्चे बेस देख लो डिस्टेंस कितना आ सी ए सो असी लिख दिता सी ए इनू देती इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चे इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी इस इक्वेशन तो ठीक है जी सैकेंड टाइम असी की लेना आ पी हुण देख लो पी दे नाल ट्रायंगल बन रहा ए बी पी बन रही है ट्रायंगल नीचे देखो ए डैश बी डैश पी ये भी ट्रायंगल बन रही है तो ठीक है लिखांगे कितना ऑब्जेक्ट ओवर इमेज ऑब्जेक्ट कितना आ ए सॉरी इमेज ओवर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू ओदा ही डिस्टेंस लेना बच्चे इत्थे डिस्टेंस पोल तो लैके ए डैश तक दी डिस्टेंस सो पी ए डैश डिवाइडेड बाय पोल तो लैके आ वाला डिस्टेंस सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पी ए सो बच्चे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल्स टू पी ए डैश ओवर पी ए आ चीज़ सबनों क्लीयर होगी सो आ गई साडी इक्वेशन नंबर 2 सो असी लिख दी इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करो राजी इफ लैफ्ट हैंड साइड इक्वल दैन राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल सो असी लिख दिता कि इक्वल आ हुण असी सैकेंड असम्पशन की पढ़ी कि ऑल द डिस्टेंसिस आर मैटर्ड फ्रॉम पोल पर इत्थे तां पोल आ नहीं रहा हुण सी ए डैश नूं कन्वर्ट करो सी ए डैश मतलब जे असी बच्चे पी सी चों आ वाला पूरे पी सी चो क्योंकि सानू पोल चाहिए पी सी चो अगर पी ए डैश माइनस कर दिए तो इन्ना को बच जूगा ठीक है जी सो असी लिख सकते हैं पी सी ए डैश इज इक्वल्स टू पी सी माइनस पी ए इदां ही पी सी ए निकाल लेना सो बच्चे साडे को की सीगा सी ए डैश ओवर सी ए सो इन्हां दी वैल्यू पुट करो सी ए डैश कितना आ पी सी माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए माइनस पी सी बच्चे पी नू प्रैफरेंस देनी है क्योंकि पोल तो डिस्टेंस लै रहे हैं सो पी वर्ड अगे आना चाहिए इनू सी पी नहीं लिख सकते असी इत्थे तुहाडा क्रॉस हो जाएगा क्रॉस नहीं भी होएगा तो बच्चे मार्क्स कट्टे जाएंगे कोई कह लो टीचर इदां दा होएगा जिहड़ा तुहाडी इस मिसटेक नू कह लो इग्नोर कर देगा तुहानू फुल मार्क्स दे देगा बट तुसी आपां किसी भी टीचर के हत्थ विच तुहाडा पेपर लग जाए असी कोई भी मिसटेक नहीं करके आनी पोल नू प्रैफरेंस देनी है मतलब कि पी सी लिखांगे ठीक है जी हुण वट इज़ पी सी इज़ माइनस आर क्योंकि ऑल द डिस्टेंसिस आर नेगेटिव क्योंकि मिरर के सामने ही बन रहे हैं ठीक है पी ए डैश कितना आ माइनस वी और पी ए कितना आ माइनस यू जस्ट वैल्यूज पुट करो बच्चे थोड़ा आंसर आ जाएगा अगे तो जस्ट कैलकुलेशन ही आ सो इनू सॉल्व कर लो तो इनू एक बारी करके देख लो नैक्सट आ जाओ राइट अजम्पशन एंड साइन कन्वेंशनस एंड ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वैक्स मिरर बच्चे सेम ही आर्टिकल है बस डायग्राम का फर्क पेगा हुण तुसी की काम करना है तुसी लिखो अपनी कॉपी के उपर मिरर फॉर्मूला लिख के इत्थे लिखो कनकेव मिरर कनकेव का बच्चे एक होएगा रियल इमेज और कनकेव का एक होएगा वर्चुअल इमेज ठीक है जी लास्ट वन की आ कन्वैक्स का बच्चे एक ही केस बनता है वो की बनता है वर्चुअल इमेज ठीक है जी सो बच्चे 3 केस आ तुसी तिन्ना केसां दी डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिकल पोर्शन तुसी सिर्फ एक बारी ध्यान नाल पढ़ लो सीख लो बाकियां दे हो जाने ठीक है कन्फ्यूजन कित्थे हुंदी है डायग्राम दे विच सो डायग्राम बना के देखो जदों बच्चे तुहाडियां तीनों डायग्राम्स अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गईयां दैन बच्चे तुसी अगले आर्टिकल ते पहुँच सकते हैं ठीक है आ कन्वैक्स दी बच्चे डायग्राम आ कि इस तरीके नाल असीं मिरर लेता अंदरों पॉलिश कर दिता प्रिंसीपल एक्सिस लेती ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने रखा एक रे ऑफ लाइट बच्चे बिल्कुल पैरलल और एक पोल दे विचों जाएगी पोल वाला बच्चे सेम मीडियम च वापस चला गया आ गया पिछे तो असीं देखा किते भी इमेज नहीं बनी से उन्हें पिछे वाले इनक्रीज़ किया और इनू पिछे वाले इनक्रीज़ किया एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिथे जाके तुहाडियां रेज ऑफ लाइट मीट कर रही जिथे मीट कर रही उत्थे असीं बनाता ए डैश बी डैश
याद रखना जे बेस ते बच्चे ए आ तो इधर भी बेस ते ए डैश ही होना चाहिए। बहुत सारे मान के 50 to 60% बच्चे यही गलतियां करते आ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ, ਏ ਕੀ ਆ ਪੈਰ, ਏ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਲਾਈਟਲੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂ ਕੀ ਆ, ਯੂ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਐਫ ਆਰ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨਸ μ1 ਓਵਰ u ਪਲਸ μ2 ਓਵਰ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ μ2 ਮਾਈਨਸ μ1 ਓਵਰ r। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ 6 ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰਿਕਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ 35 ਆਊਟ ਆਫ 35 ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਬੱਚੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ 2-3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਵੈਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਕਰ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਆ, ਰੇਅਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਰੇਅਰਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆ ਬੱਚੇ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ 1। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੱਚੇ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂਦੀ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਤਾਂ ਆਈ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਤੇ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਫਾ, ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਟੈਪ 1, ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਆਈ ਔਰ ਆਰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਪ 2 ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਨੈਲਜ਼ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ 2 ਹੀ ਸਟੈਪ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ 5 ਕੇਸ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਰਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਔਰ ਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋਰਮਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨੋਰਮਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨੋਰਮਲ, ਆਹ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਂਗਲ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ 2 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਆਈ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਐਲਫਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ। ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਐਲਫਾ ਪਲਸ ਗਾਮਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆ ਰਹੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ? ਗਾਮਾ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਪਲਸ ਬੀਟਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੀਟਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਐਂਗਲਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਨ ਆਰ ਪਲਸ ਟੈਨ ਬੀਟਾ, ਟੈਨ ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਬੀਟਾ,
हो गया जी। ठीक है, हुण बच्चे टैन कितना असीं सॉल्व करांगे। टैन किहदे इक्वल हुंदा आ, टैन आ कौन आ बच्चे, एल्फा। एल्फा आ वाला ट्रायंगल आ। ठीक है जी बच्चे, टैन थीटा किहदे इक्वल हुंदा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर कितना बच्चे, ए एन, और बेस कितना आ, बेस कितना आ, ओ एन। सो आ गया बच्चे टैन एल्फा की वैल्यू। सिमिलरली टैन बीटा सॉल्व करते हैं। टैन बीटा परपेंडिकुलर, हुण बच्चे बीटा कढ लो। सो बीटा सॉल्व करते हैं, बीटा ट्रायंगल आ रही छोटी जी। ठीक है जी, सो टैन बीटा के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर कौन आ, ए एन, बेस कौन आ, एन आई। हो गया जी। सो सिमिलरली टैन गामा सॉल्व कर लो। टैन गामा मतलब छोटा जिहा ट्रायंगल। ठीक है, आ वाला छोटा जिहा ट्रायंगल, परपेंडिकुलर कौन आ, ए एन, और बेस कौन आ, एन सी। ठीक है जी, पता लग गया बच्चे टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा किद्दां फाइंड आउट कीते। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनियां शुरू करो। साडे को की आया सी, आई इज इक्वल्स टू टैन एल्फा प्लस टैन बीटा, टैन गामा सॉरी, प्लस टैन गामा। सो टैन एल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे, एल्फा कितनी है, ए एन ओवर एन ओ, और टैन गामा कितनी है, ए एन ओवर एन सी। पुट कर दी, इद्दां ही आर की वैल्यू पुट कर दो। हुण सानू पता बच्चे जिहड़ी असी डिस्टेंस आ वाली डिस्टेंस आ, ओहो ओ एन की बजाय सारी की सारी डिस्टेंस पोल तो लवांगे। सो ओ एन की जगह पर असी की लिख दिता, ओ पी। सो सारी जगह पर असी ओ एन की जगह पर की कर दिता, पी च कन्वर्ट कर दिता। ठीक है जी, पी च कन्वर्ट करता। सो आ गया ओ पी, पी सी। सो इस फॉर्म के विच आ गया। ठीक है, आई और आर पता लग गया बच्चे, असी आई और आर पता कर लिया। हुण स्टैप नंबर 2, स्टैप नंबर 2 किद्दां लगावांगे, स्नैल्स लॉ। हुण स्नैल्स लॉ बच्चे ध्यान नाल देखो किद्दां अप्लाई करना है। एंगल पहला किहड़ा बनिया बच्चे, आई, दूसरे नंबर ते कौन बनिया, आर। सो लिखिया साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई जिहड़ा आ किस मीडियम दे विच आ, जिद्धर नूं रे ऑफ लाइट जा रही आ, जिद्धर नूं रे ऑफ लाइट जा रही आ वो की आ तुहाडा म्यू 2। ठीक है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू किधर रे ऑफ लाइट गई, म्यू 2 ओवर किधरों आई, म्यू 1 चो। हमेशा इदा देखना बच्चे, जे डेंसर टू रेयर मीडियम गई आ तो रेयर मीडियम च पहला गई तो म्यू 1 उपर चल जाना। सैकेंड स्टैप ध्यान देने वाला बच्चे, साइन आई ओवर साइन आर तो यही रहिंदा है ऑलवेज, सिर्फ आ चीज़ बदल जाती है, कदे म्यू 1 ओवर म्यू 2 लिखिया हुंदा, कदे म्यू 2 ओवर म्यू 1 लिखिया हुंदा। बस ध्यान रखना किहदे विच रे ऑफ लाइट गई वो उपर लिखना, कित्थों आई आ वो नीचे लिखना आ। क्लीयर हो गया जी। बाकी तो बच्चे सिंपल आ कि असी इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिता, साइन आई और साइन आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, और रिप्लेस कर दिता कला आई आर दे विच। आई और आर की वैल्यू बच्चे असी सो बच्चे जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, इनू सॉल्व करो। बाकी आई थिंक बच्चे हुण पेपर दे दिन ना तो तुहानू कैलकुलेशन हुण तक तो आंदी होएगी। सो जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो तो बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हुण बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम इत्थे तक ही आंसर कढ़ के आना या म्यू 2 ना डिवाइड तो नहीं करना। सो बस बच्चे पंजाब बोर्ड तक इत्थे तक ही आंसर जिहड़ा सी सॉल्व करके आना। सो इहदे नाल दे बच्चे टोटल 6 केसिस आ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। नेक्स्ट आ स्टेट साइन कन्वेंशनस एंड अजम्पशनस ड्राइव द एक्सप्रैशन फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों लिए इंपॉर्टेंट आ। बच्चे जो सफेरिकल मिरर है 3 मार्क्स का आ सकता है। सफेरिकल मिरर लेंस मेकर तो बच्चे तुसी इदा कह लो कि 80 to 90% चांस है कि लेंस मेकर फॉर्मूला साडे एग्जाम दे विच आ जाए। सो इनू बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके दे नाल प्रिपेयर करना है। सब तो पहला बच्चे तुसी लेंस फॉर्मूले की डेफिनेशन लिखोगे कि लेंस फॉर्मूला है की आ। दैन अजम्पशनस बच्चे जो अजम्पशनस कह लो अपनिया लेंस दियाँ ऑलमोस्ट सेम आ कि अपर्चर जो स्मॉल होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जोड़ा लेंस आ बच्चे वो थिन होना चाहिए। ऑल डिस्टेंसेज आर मैजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जिद्दां बच्चे मिरर दे विच पोल तो लैने असी लेंस दे विच बच्चे सेंटर तो लैने। ठीक है जी। सो ये हो गए साडे बच्चे अजम्पशनस। इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद प्रिंसीपल एक्सिस। प्रिंसीपल एक्सिस के नाल बच्चे जोड़े आ एंगल्स बनती है कि होंगे आ स्मॉल एंगल्स होंगे आ।
साइन कन्वेंशनस राजे की आ, ऑल द डिस्टेंसेस आर मैजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर कन्वेक्स लेंस आ तो एफ की होएगी पॉजिटिव, अगर कनकेव आ तो एफ की होएगी नेगेटिव। डिस्टेंस मैजर्ड इन अ डायरेक्शन इंसीडेंट आर टेकन एज अ पॉजिटिव, तो ऑपोजिट साइड की होएगा नेगेटिव। सो बच्चे आ लेट अस कंसीडर जिहड़ा आ तुसी करना आ, तो बच्चे आ वाली टर्म तुसी स्किप कर सकते हैं। सीधा रिफ्रैक्शन जिहड़ी आ सरफेस लो बच्चे XP1 Y। ध्यान नाल बच्चे डायग्राम समझ लो। असी की कीता, इस तरीके नाल एक रे ऑफ लाइट आई। बच्चे मोस्टली दी डायग्राम गलत बनाते, इत्थे बिल्कुल डायग्राम सही बनी हुई है, तुसीं इदां ही बनानी है। रे ऑफ लाइट गई, दैन नॉर्मल ड्रॉ करना। बच्चे नॉर्मल ड्रॉ किया आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये साडा फर्स्ट सेंटर ऑफ करवेचर बनिया, तो आ लिख दिता C1, रेडियस ऑफ करवेचर R1। सो थोड़ी जी रे ऑफ लाइट बैंड हुई, टकराई और दूसरे पासे इमेज बन गई। सो बच्चे इमेज केड़ी बनी हुण, क्योंकि हले असी आ सैकेंड पोर्शन कंसीडर नहीं किया, ਇਹਦਾ मतलब जो इमेज बनी आ वो डॉटेड लाइन आ बनी आ। सो दिस इज़ द फाइनल इमेज जिहड़ी कि V1 आ। दिस इज़ अगर असी आ वाला पोर्शन बच्चे कंसीडर करते हैं, दैन इत्थों इमेज जिहड़ी आ अगेन डेंसर टू रेयर मीडियम बैंड होके आई ते जाके इमेज बनेगी और ਇਹਦਾ नॉर्मल इधर बनेगा। दिस इज़ C2, ठीक है जी। सो बच्चे मैथमेटिकल पोर्शन ਇਹਦਾ किद्दां लिखना आ, फर्स्ट की आ वाला पोर्शन आ, ठीक है, रे ऑफ लाइट इस तरीके ना गई, आ की आ बच्चे म्यू1 इत्थों लैके बच्चे सेंटर तक की दूरी कितनी आ, डिस्टेंस U। सो म्यू1 ओवर U किद्दां लिखांगे, म्यू1 ओवर U। आ कौन आ, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। और बच्चे यदि जो टकराई है तो किहड़ी इमेज बनी है, I1 मतलब कि V1। सो किद्दां लिखांगे, म्यू2 ओवर V1। सो असीं लिख दी म्यू2 ओवर V1। आ किद्दां लिखांगे, म्यू2 पॉजिटिव दा, म्यू1 नेगेटिव दा। सो म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर बच्चे इत्थे जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर बनाया सी वो किहड़ा सीगा तुहाडा R1। सो इत्थे आ गया R1, ठीक है जी। जदों असीं सैकेंड सरफेस लैनी आ, सैकेंड सरफेस बच्चे किद्दां कंसीडर करांगे, आ वाली सरफेस। हुण जिहड़ी इमेज बच्चे डॉटेड लाइन च बनी सीगी, V1 थोड़ी एज एन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। सो कित्थे आ ये किहदी वजह नाल बनी आ, डेंसर मीडियम करके। सो क्योंकि जिहड़ा U हुंदा ऑलवेज नेगेटिव हुंदा, इत्थे V1 एज अ नेगेटिव जिहड़ा आ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। सो माइनस म्यू2 ओवर V1 प्लस हवा च की आ बच्चे म्यू1, और जिहड़ी फाइनल इमेज बनी आ वो कितनी सी I, तो डिस्टेंस कितनी आ V। सो म्यू1 ओवर V, ठीक है जी। सो इनू याद किद्दां करना है, म्यू1 पॉजिटिव, म्यू2 नेगेटिव, म्यू2 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय R, डन। बाकी दा जस्ट बच्चे वैल्यूज़ ऐड कीतियां, सॉल्व करके बच्चे तुसी आंसर लिखना है। और बच्चे 1 ओवर F दी जिहड़ी स्पैशल केस है ना, स्पैशल केस तुसी करके ही आनी आ। 5 मार्क्स का पेपर विच बच्चे क्वेश्चन आने के चांसिस ज़्यादा आ, इहदा मतलब तुसी 5 मार्क्स के विच अपने साइन कन्वेंशनस, अजम्पशनस, लास्ट विच स्पैशल केस सब कुछ करके आना। नैक्सट आ जाओ कन्वैक्स लेंस। बच्चे कन्वैक्स लेंस सेम जिद्दां कनकेव असी मिरर कीते आ उदां ही करना आ, सिर्फ डायग्राम चैक कर लो। डायग्राम लेंस लै लो, रे ऑफ लाइट एक सीधी गई और एक सेंटर चो, जिहड़ी सेंटर चो जाती है कदे भी किसी पासे नूं बैंड नहीं हुंदी। रे ऑफ लाइट टकराई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ते जाके तुहाडी इमेज बन गई। हुण देखो पैर विच की सी B, पैर विच की आ B डैश, ठीक है। हैड की आ A, हैड की आ बच्चे A डैश, डन। जिधरले पासे बच्चे ऑब्जेक्ट पिया होवे वो की हुंदा आ -U, मतलब लिखना तुसी U ही आ, साइन कन्वेंशन दस रही हाँ। इमेज दूसरे पासे जाके बनी तो की हो गई प्लस दे V। F की आ दूसरे पासे जाके बनी तो F पॉजिटिव। लिखना बच्चे उदा ही है, एक बारी सेंटर एक बारी फोकस। बच्चे मिरर दे विच की सीगा, एक बारी तुसी लेना है पोल तो एक बारी सेंटर, और जो लेंस लेने आ बच्चे एक बारी लेना तुसी सेंटर तो एक बारी फोकस, ठीक है जी। सो ABC, A डैश B डैश C ट्रायंगल बन रही है, ठीक आ। दूसरा बच्चे F दे नाल लेना, ABF। देखो ट्रायंगल नहीं बन रही, असी की किया AB जिन्ना ही डिस्टेंस आ CD दा, सो CDF नाल आ गया A डैश B डैश F, ठीक है जी। इदा करके बच्चे तुसी इहनूं सॉल्व करना आ। सो कैलकुलेशन बच्चे करके देख लो, किते भी कोई प्रॉब्लम होएगी बच्चे शाम तक अज असी ऑप्टिक्स बच्चे खत्म करनी आ हर हालत च। रात के 11 बजे तक बच्चे थोड़ी ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए आ, या सुबह तक, सुबह हद बच्चे 9-10 बजे तक, क्योंकि हले बच्चों का 7th यूनिट चल रहा आ, तो 7th यूनिट हले बच्चे तुसी 9-10 बजे तक कंप्लीट कर लिया होना। हुण तुसी ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दो। ऑप्टिक्स बच्चे कल जी 9-10 बजे तक थोड़ी कंप्लीट हो जानी चाहिए आ।
ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगेन एक रे ऑफ लाइट होर बनाओ, अगेन बेंड होगी, एक होर रे ऑफ लाइट बनाई तो पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस जाएगा, जिथे जाके तुसीं इहनूं की बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगेन एंगल वड्डा करूँगे तो आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। हुण ध्यान रखना बच्चे आई एंगल जिहड़ा आर एंगल दे इक्वल हुंदा आ। सो इहदियां कंडीशनस बच्चे तुसीं लिखनियां, दैन रिलेशनशिप जिहड़ा आ तुसीं नाल अच्छे तरीके दे नाल करके आना आ। ठीक है जी। सो बच्चे नैक्सट आर्टिकल आ प्रिज्म वाला। सो प्रिज्म वाला आर्टिकल बच्चे मैं एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि जिन्नी बार भी मैं ऑप्टिक्स का टैसट लिता ना बच्चों का ऑलमोस्ट ऑप्टिक्स के टैसट के विच बच्चे प्रिज्म तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल लर्न किया होया आ। सो बाई चांस बच्चे इन्हां विचों कोई भी लैक्चर तुसीं समझना होवे तां तुसीं दस सकदे आ, तुहानूं पर्टिकुलर बच्चे मैं लिंक शेयर कर देंगी। ठीक आ। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके नाल समझने आ। सो प्रिज्म फार्मूला बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। अगर तुहानूं दोनों आर्टिकल्स दे विच कन्फ्यूजन होवे प्रिज्म फार्मूला ते बच्चे उपर वाला आर्टिकल तो प्रिज्म फार्मूला कर लो, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, ये पेपर विच आने के चांसिस ज़्यादा आ। सो ये बहुत अच्छे तरीके ना करना। और बच्चे तुसीं इहदी डायग्राम नाल जिहड़ा ग्राफ आ ये जरूर प्लॉट करके आना, क्योंकि रीसेंट टाइम दे विच बच्चे अगर साडे वर्गे टीचर आ तां डेफिनेटली वो ग्राफ एक्सपैक्ट करदे आ कि स्टूडेंट्स बना के आना। सो बच्चे आर्टिकल तुसी इस तरीके ना सॉल्व करके नैक्सट आ जाओ बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिहड़ा तुसी पेपर दे लई बच्चे मन के चलो कि 5 मार्क्स का पेपर विच आउण दे चांसिस हैगे आ। बच्चे जिद्दां प्रिज्म फार्मूला 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आ ते 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आ प्रिज्म फार्मूला, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो टैलीस्कोप बच्चे 3 मार्क्स के आने के चांसिस बहुत घट आ, बट 5 मार्क्स के आने के चांसिस तुसी 80 तो 90% मान के चलो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टैलीस्कोप, लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला इन्हां विच्चों चारां दे विच्चों कह लो आने के चांसिस ज़्यादा आ। सो इन्हां नूं ज़्यादा अच्छी तरीके नाल प्रिपेयर करो। लेंस फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, दैन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ते टैलीस्कोप बच्चे ये 4 कह लो रे ऑप्टिक्स के विचों 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसिस ज़्यादा आ। तो 3 मार्क्स के बच्चे क्वेश्चन आने के चांसिस आ इंटरनल मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, ऑप्टिक्स के बच्चे जड़े आ अपने एप्लीकेशनस आ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दियां उन्हां दे आने के चांसिस ज़्यादा आ। सो चलो आप एक बार डिस्कस कर लैंदे आ। सो बच्चे इत्थे छोटी जी डायग्राम च मिसटेक आ, तुसीं आ वाला लेंस थोड़ा जिहा वड्डा बनाना आ, बिल्कुल एज तो जिहड़ा आ रिफ्लैक्शन नहीं हुंदी, थोड़ा जिहा वड्डा बनाओ। ठीक है। रे ऑफ लाइट गई, एक तो बिल्कुल सेंटर चों पास हो गया और एक इधरों पास हो गया। ठीक है। जिथे भी जाके लाइट रेस तुहाडियां बीट हुईयां उत्थे जाके इमेज बन गई। हुण सैकेंड लेंस बच्चे पहले लेंस दे नालों थोड़ा जिहा वड्डा होना चाहिए आ, पतला ते वड्डा होना चाहिए। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सेंटर चो चलेगी और एक बिल्कुल सीधी गई इस तरीके ना। थोड़ी जी एक्यूरेट दी बुक दे विच मिसटेक आ, सो इनू करैक्ट कर लो। और रे ऑफ लाइट गई इस तरीके ना, इनू ही पिछे वाले इनक्रीज़ किया और इनू पिछे वाले इनक्रीज़ किया, किते ना किते बच्चे थोड़ियां रेज ऑफ लाइट मीट करनगियां, जिथे भी मीट करनगियां होगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है जी। सिंपल डायग्राम आ बच्चे, बहुत केयरफुली इनू समझ लो तो देख लो। ठीक है। सो रेज ऑफ लाइट किधर नूं गईयां वो जड़ियां तुसी एरोज जरूर पा के आनियां। हुण बच्चे आ की आ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस पहला की आ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट तो लैके बच्चे सेंटर तक की दूरी U0, नॉट का मतलब की आ ऑब्जेक्ट। हुण इमेज तक की डिस्टेंस की आ V0। क्लियर हो गया। सो इदा सो बच्चे सब तो पहला प्रिंसीपल लिखूंगे, प्रिंसीपल लिखन तो बाद मैग्नीफिकेशन पावर लिखनी है। मैग्नीफिकेशन पावर M इज इक्वल्स टू बीटा ओवर एल्फा। बीटा एंड एल्फा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। सो tan बीटा ओवर tan एल्फा। हुण tan बीटा एंड tan एल्फा बच्चे अपनी डायग्राम दे विच देखो, आ रहा बीटा एंगल और आ रहा एल्फा एंगल। ठीक है जी। एल्फा और बीटा बच्चे असी जड़ा आ एल्फा बीटे लिए भी तुसी पूरा ट्रायंगल चक सकते हैं। सो इस तरीके ना तुसी एल्फा और बीटा जड़ा आ फाइंड आउट कर लेना। जिद्दां ही एल्फा बीटा फाइंड आउट करूँगे बच्चे इत्थे पुट कर दो वैल्यूज़ दोनों। सो जिद्दां ही पुट करूँगे C2 A डबल डैश आपस कैंसल आउट, सो फाइनली आ बच गया। हुण M का आंसर बचिया साडे कोल बच्चे A डबल डैश B डबल डैश और PA डैश। PA डैश कितना आ, ध्यान नाल देखो बच्चे, PA डैश जिहड़ा आ कितना आ जिन्नी तुहाडी AB आ। ठीक है जी।
ਸੋ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਡਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ। ਏ ਬੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਆ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਈ ਪੀਸ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ -1/u + 1/v = 1/f। जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, दैन डी दे नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करो और लास्ट तक बच्चे नू सॉल्व कर लो। ठीक है जी। टैलीस्कोप भी बच्चे सेम ऑलमोस्ट इन्ना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टैलीस्कोप के बच्चे दो केसिस आ, ठीक है। आ सी बच्चे साडे को माइक्रोस्कोप और इस तो बाद आ बच्चे साडे कोल टैलीस्कोप। टैलीस्कोप के बच्चे दो केसिस आ, एक हैगा आ इनफाइनाइट केस नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक आ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दोनों आर्टिकल बच्चे तुसी बहुत अच्छी तरीके ना प्रिपेयर करने हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। मान लो थानू टैलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच जिहड़ा कन्फ्यूजन हुंदी आ, मान लो एक पासे कंपाउंड आ और एक पासे टैलीस्कोप आ, तो मान लो थानू ये दोनों च कन्फ्यूजन हुंदी है तो टैलीस्कोप छड्ड दिओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा अच्छी तरीके ना करो, क्योंकि पंजाब बोर्ड दे विच बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ठीक है जी। सो नैक्सट आ बच्चे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तुसी स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। नैक्सट आ जाओ बच्चे हाइगन्स प्रिंसीपल। हाइगन्स प्रिंसीपल बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो तुसी 3 मार्क्स का बच्चे हुण 5 मार्क्स के लिए असी मान के चलिया कि असी रे ऑप्टिक्स जिहड़ी अच्छे तरीके ना कंप्लीट कर ली। हुण वेव ऑप्टिक्स बच्चे 3 मार्क्स की आएगी ही आएगी। इहदा मतलब 3 मार्क्स के विच बच्चे तुहाडा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी हो सकता, तो वेव का भी हो सकता। मान लो जे रे ऑप्टिक्स का बच्चे 2 ऑप्शनस आ गई 5-5 मार्क्स के, दोनों ही रे ऑप्टिक्स के विचों आ गए मान लो क्वेश्चन, तो 100% श्योर आ बच्चे 3 नंबर का जिहड़ा क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स के विचों ही आएगा। इदा कदे नहीं हो सकता कि सारा ही पेपर वेव ऑप्टिक्स के विचों रे ऑप्टिक्स के विचों आ जाए। क्लियर हो गया। या तो बच्चे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का आएगा और इधर ऑप्शन होएगी वेव दे नाल। जे दोनों क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के आ गए तो 100% श्योर आ कि इत्थे क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का ही आएगा। क्लियर होगी बच्चे आ गल। इहदा मतलब असी वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल भी छड्ड के नहीं जा सकते। सो बच्चे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ते लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, ये दोनों आर्टिकल बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, तुसी अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जाने आ। हुण अगे आ जाओ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दी फ्रिंज विथ। बच्चे बहुत ईजी आर्टिकल है और ये 5 मार्क्स के आने के चांसिस 80 to 90% आ, क्योंकि बच्चे वेव ऑप्टिक्स के विचों अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसिस आ ना, वो हैगा आ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस वाला, फ्रिंज विथ या फिर डिफ्रैक्शन वाला। सो इन्हां दे चांसिस ज़्यादा आ। सो हाइगन्स प्रिंसीपल बच्चे 3 मार्क्स विच आने के चांसिस ज़्यादा है, तो इंटरफेरेंस से 5 मार्क्स, डिफ्रैक्शन भी 5 मार्क्स। डिफ्रैक्शन अगर तुहानू डिफिकल्ट लगती है तो छड्ड जो, बिल्कुल छड्ड जो, क्योंकि 3 मार्क्स का वो आ नहीं सकता। इंटरफेरेंस भी बच्चे 3 मार्क्स की आ नहीं सकती। क्लियर हो गया जी। सो आ वाला क्वेश्चन बच्चे 5 मार्क्स का आएगा। सो इनू अच्छी तरीके ना प्रिपेयर कर लो। सो बच्चे किते भी कोई प्रॉब्लम होएगी तुसी जस्ट कमेंट सैक्शन दे विच दे देना कि कोई क्वेश्चन क्लीयर नहीं होया, तो बच्चे तुहानू जिहड़े लिंक आ इहदे मिल जाणगे। ठीक है। सो सारी वीडियोज़ दे बच्चे लिंक एक्सप्लेनेशन तुहानू मिल जाएगी। सो आ क्वेश्चन तुसी अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करने आ। हुण आ जाओ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो बच्चे आ क्वेश्चन जड़ा पेपर च आने चांसिस 3 मार्क्स के विच हुंदे आ। जे तुसी 3 मार्क्स की वेव ऑप्टिक्स नहीं तैयार करना चाहते, सॉरी 5 मार्क्स के लिए वेव ऑप्टिक्स नहीं तैयार करना चाहते, 3 मार्क्स के लिए बच्चे तुहानू प्रिपेयर करना ही पैना आ, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स दोनों चो आ सकता। सो बच्चे आ कर लो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज लैस इंपॉर्टेंट आ, बट 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बच्चे ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लो। ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन अगर बच्चे थोड़े एग्जाम के आया तो 5 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कदे भी नहीं आता। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को बच्चे डिफ्रैक्शन डिफिकल्ट लगती है। अगर तुसी स्किप करके जाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। सो नैक्सट आ जाओ बच्चे वेस्टर्स लॉ, जिहड़ा कि तुहाडे एग्जाम के 2 मार्क्स का एज वैल एज 3 मार्क्स का दोनों चांसिस हैगे आ कि आ सकता है। 2 मार्क्स का आने का चांसिस बच्चे ज़्यादा हुंदा आ। दैन ट्रांसवर्सल इन नेचर लैस इंपॉर्टेंट आ, तुसी स्किप कर सकते हैं।
ठीक है। नैक्सट बच्चे आ 2 मार्क्स के जस्ट क्वेश्चन आ, सो एक बार जस्ट इन्हों देख लेना ताकि असी कोई भी चीज़ जी स्किप करके ना जाइए। वेस्टर्स लॉ पिछे वाले क्वेश्चन सारे छड्ड दो, अगर छड्डना चाहते हैं तो 23rd क्वेश्चन जरूर करके जाना। वेस्टर्स लॉ और पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन वेस्टर्स लॉ, ठीक है जी, ये जरूर करके जाना। दैन बच्चे मालिस लॉ आ जो कि बहुत लैस चांसिस आ एग्जाम के आने के, बट थोड़े सैंपल पेपर के आया होया तो उन्होंने ध्यान में रखते हुए तुसीं इहनूं लर्न करके जरूर जाना। सो जरूरी नहीं है असीं इन्ना वड्डा लिखना आ, तुसीं सिंपल डेफिनेशन लिख दिओ, डेफिनेशन लिख दो, आ लिखण की लोड़ नहीं आ, डायरैक्ट लिखो कि इंटेंसिटी जिहड़ी एंपलीट्यूड स्केयर दे इक्वल हुंदी आ। सो इंटेंसिटी कितनी आ आई और एंपलीट्यूड कितना आ ए कॉस थीटा दा होल स्केयर, ठीक है जी। सॉल्व किया तो इस तरीके नाल जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो बच्चे इत्थे तक सीगा साडा कह लो ऑप्टिक्स के क्वेश्चनस। बच्चे हुण तुहानूं क्वेश्चनस इदां दे दिंदी आ जिहड़े कि कह लो तुहाडे प्रैक्टिस दे लई होणगे। सो आपां देख लैंदे आ जिहड़े अनसॉल्वड क्वेश्चन आ पेपर च किद्दां दे आ सकदे आ। बच्चे अगर वो तुहानूं आंदे होए तो मतलब पेपर की तैयारी फुल आ, अगर नहीं आंदे होए तो मतलब तुहानूं होर तैयारी की जरूरत आ। सो ट्राई करो बच्चे। अज कितनी तरीक आ अपनी 12 तरीक, ठीक है। अज 12 मई आ तो बच्चे 13 मई जिहड़ा आ 13 मई नूं 11 वजे तक जिहड़ी तुहाडी ऑप्टिक्स आ वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आ। सो जिहड़े मैडिकल के स्टूडेंट आ उन्हां दे बच्चे 14 मई नूं जिहड़ा तुहाडी ऑप्टिक्स आ कंप्लीट हर हालत विच करनी आ। सुबह तो लैके रात तक बच्चे 10-11 बजे तक जिहड़ी तुसीं ऑप्टिक्स कंप्लीट करनी आ। अगर टारगेट सैट करोगे तो बच्चे कंप्लीट होएगा, अगर टारगेट सैट नहीं करोगे तो बच्चे फिर सानूं लगना कि बहुत दिन पे आ कर लांगे। सो नहीं होएगा, ऑप्टिक्स वैसे ही बहुत लेंथी आ। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जान तो पहला वीडियो नूं लाइक कर दिओ ते मैक्सिमम शेयर कर दिओ। थैंक यू सो मच।